ویلکم بیک۔ نواز شریف، آصف علی زرداری اور بانی پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے بیٹھ جائیں تو مسائل حل ہو جائیں گے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی بڑی تجویز، کہتے ہیں کہ جب تک سر جوڑ کر نہیں بیٹھیں گے بحران سے نہیں نکلیں گے۔ حکومت پورے خلوص کے ساتھ مذاکرات کی کامیابی چاہتی ہے۔ مساک جمہوریت سے پہلے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اپنی غلطیاں مانی ہیں، آج بھی غلطیوں کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ 26 نومبر کے بعد سیاسی مخالفین کے رویوں میں تبدیلی آئی ہے۔ عدم برداشت کا رویہ پاکستان کی سیاست کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ بحران ہر ملک میں ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، لیکن پاکستان میں جو ہے وہ بحرانوں کی کوئی صورت آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس حد تک پہنچ چکی۔ سیاستدانوں کو اکٹھے ہونا چاہیے، بیٹھ کے بات کرنی چاہیے کہ بیٹھ کے بات کرنے سے پہلے یہ بڑا ضروری ہے کہ اس سے پہلے جو غلطی کوتاہی ہوئی ہو بیٹھنے والوں سے اس کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور میاں نواز شریف، یہ بات دونوں نے اس سے پہلے جو کوئی کمی کوتاہی غلطی ہوئی تھی اس کو انہوں نے جو ہے وہ تسلیم کیا کہ سیاستدان جو ہے وہ بیٹھیں اور بیٹھ کے اپنے ایشوز کو جو ہے وہ ریزالو کریں۔ مذاکرات کی کامیابی یا ناکامی کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوگی۔ سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں ہر مسئلے کا حل مذاکرات میں ہوتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی مذاکرات میں اپنے لیے گنجائش نہیں ڈھونڈ رہے۔ پی ٹی آئی کے جدوجہد کا مرکز قانون کی حکمرانی ہے۔ ہم تشدد کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے، ملک میں سیاسی استحکام لانا چاہتے ہیں۔ سیاسی استحکام سے سماجی اور معاشی استحکام جڑا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مذاکرات کی کامیابی اور ناکامی اس کی ذمہ دار کون ہوگی، وہ یہ جو ایک حکومت برائے نام حکومت ہے۔ ہم بالکل رد کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی نیگوسیشن ہو رہی ہے جس میں کہ بانی چیئرمین عمران خان وہ اپنے لیے کوئی گنجائش ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ انہوں نے واشگاف الفاظ میں کہا ہے انیجمنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ یہ تاثر ملے کہ وہ یہ سب کچھ اپنے لیے کر رہے ہیں۔ ہم کسی بھی پرتشدد اور ایکسٹریمزم کے بالکل حامی نہیں ہیں۔ کہ سیاسی استحکام سے معاشی استحکام جڑا ہوا ہے، سماجی استحکام جڑا ہوا ہے۔ مسلم لیگ سمجھتی ہے ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ان کے پاس اتنی اکثریت نہیں وہ یک طرفہ اور متنازع فیصلہ کریں۔ ان کی سیاست موٹروے سے شروع ہو کر میٹرو پر ختم ہوتی ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں معاہدہ ہوا، اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ مجھے امید ہے کہ ہماری شکایات کو سنجیدگی سے لیا جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس، کہا ہم نے انٹرنیٹ کی سپیڈ میں کمی کے بجائے اسے تیز کرنا تھا۔ پاکستان کے انٹرنیٹ کیبل میں ایسا کیا ہے کہ سمندر کی مچھلیاں صرف پاکستان کے انٹرنیٹ کیبلز کھاتے رہتے ہیں، وہ بھی جب اسلام آباد میں کوئی دھرنا ہو؟ اگر ایسا کریں گے تو سرمایہ کاری کیسے آئے گی؟ ہم نے سپیڈ میں کمی لینے کے بجائے اس کو تیز کرنا تھا کہ نہیں، ہم نے اپنا ہی انٹرنیٹ کو جو آج کل انفراسٹرکچر ہے ان کو یہ سمجھ نہیں آتا، اس لیے ان کی سیاست تو یہ موٹر وے سے شروع ہوتا ہے اور میٹرو پہ ختم ہوتا ہے، مگر یہ 90 کی دہائی کا انفراسٹرکچر تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے انٹرنیٹ کیبلز میں ایسے کیا ہے کہ جو ہمارے سمندر کے مچھلیاں ہیں وہ صرف پاکستان کے انٹرنیٹ کیبلز کھاتے رہتے ہیں، وہ بھی جب بھی اسلام آباد میں کوئی دھرنا ہو۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے مذاکرات میں مساک معیشت کو بھی شامل کرنے کی تجویز دے دی۔ کہا تلخیاں اپنی جگہ مگر بات چیت ہونا ضروری ہے۔ جس جماعت نے 4.25 سال بات کرنے سے انکار کیا انہوں نے مجھ سے اپیل کی، اپوزیشن کے رابطے کے بعد وزیر اعظم سے مذاکراتی کمیٹی بنانے کی درخواست کی۔ بات کیا کرنی ہے یہ حکومت اور اپوزیشن کا کام ہے۔ حکومت نہ چاہتی تو اپوزیشن کے پروڈکشن آرڈر جاری نہ ہوتے۔ سیاسی سلسلہ یہ چلایا کہ تلخیاں اپنی جگہ مگر بات چیت ہونی ضرور چاہیے، اور وہ جماعت جس نے 4.25 سال بات کرنے سے انکار کیا، انہوں نے جب اپیل کی اور ذمہ داری اسپیکر کے دفتر پہ ڈالی تو میرا تو کام یہی تھا کہ میں حکومت پاکستان کو پیغام پہنچاؤں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کو بٹھانا، ان کی بات چیت کرانا، مگر گفتگو کیا ہوتی ہے یہ ٹریجری اور اپوزیشن فیصلہ کرے گی۔ انہوں نے
कायद मोहतरम से मशवरा करके उन्होंने इजाज़त दी और एक हाई लेवल कमेटी बनाई, जो हाई लेवल कमेटी बैठ के गुफ्तगू करेगी। पीडीएम हुकूमत में भी हम मुज़ाकरात का कहते थे, समझ नहीं आता पिछले 15 दिन में कौन सा तावीज़ निकल आया कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुझे बताया जाए 15 दिन में ऐसा क्या हुआ जो ये मुज़ाकरात पर तैयार हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुज़ाकरात का मुखालिफ नहीं, मुज़ाकरात ज़रूर करें लेकिन इस्तेमाल ना हो जाएं। नवाज शरीफ खुद चलकर बानी पीटीआई के पास गए, लेकिन पीटीआई वाले माजी में कहते हैं हमारी मुज़ाकरात की औकात ही नहीं। ख्वाजा आसिफ बोले बानी पीटीआई पहला सियासतदान है जो अमेरिका की मिन्नत तरले कर रहा है कि मुझे बचाओ। पहले कहा था गुलामी नामंजूर, अब कहता है गुलामी फौरी मंजूर। ये 15 दिनों में क्या चीज़ ऐसी आई है कि पीटीआई मुज़ाकरात पे जो है वो राज़ी हो गई है, और हमारे साथ एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो वो हर वक्त राज़ी थे। मुझे को बताए तो सही इस चीज़ का, ये 15 दिन में क्या कोई नुस्खा जो है सामने आया है, क्या कोई तवीज़ आया है या क्या हुआ है, किसी ने फूंक मारी है कि है। मैं मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं हूँ, कदी तौर पे खिलाफ नहीं हूँ। आप 15 दिन पहले के जो है अगर बयानात जो है पीछे चलते जाएं 2-2.5 साल में तकरार के साथ कहा गया है कि हम ये इनकी कोई औकात नहीं है, जिनकी औकात है हम उनसे बात करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा हमारी मुज़ाकराती टीम की अव्वलीन तरजीह है कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बने। हसन न्याजी समेत बाकी सब असीरान के खिलाफ सजाएं हाई कोर्ट से कलअदम हो जाएंगी। वफाकी हुकूमत ने 3 सूबों को मुकम्मल नजरअंदाज कर रखा है। वफाकी हुकूमत ने केपी को अभी तक 1500 अरब रुपए अदा नहीं किए। पंजाब इस वक्त खसारे में है जबकि केपी सरप्लस दिखा रहा है। और 9 मई के हवाले से कि हमारी मुज़ाकराती टीम का एक ये डिमांड भी है, अवलीन डिमांड्स में है कि इनके ऊपर आपके कमीशंस बैठें। ये चीज़ें आपकी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ओवरटर्न हो जाती हैं और उस पे हमारे असीरान में जिनमें हसन न्याजी साहब हैं और बाकी और सारे हमारे असीरान हैं जिनको ये सजा हुई है, इस चीज़ को हम लोग मिलिट्री कोर्ट्स कंडेम करते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून साद रफीक ने कहा है कि उन्हें ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह को कमर जावेद बाजवा ने जेल में डाला। पाकिस्तान रिमोट कंट्रोल जमहूरियत से आगे नहीं बढ़ सका। चंद जज अपने चैम्बर में बैठकर मुल्क चलाने का फैसला करते हैं। मुल्क में बहरान बढ़ते ही चले जा रहे हैं। समझ नहीं आती जौहरी ताकत तजुर्बात से कैसे चल सकती है। जो भी आता है कहता है मुल्क मेरी मर्जी से चलेगा। यही हालात रहे तो बहुत से मुतल्लिका लोग गैर मुतल्लिका हो जाएंगे। तो जेल में हमें तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने और चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने उन्होंने डाला था, फिर इमरान खान साहब ने उसकी एक्सटेंशन करवाई। वो मुझे बड़ा टाइम मिल गया, जो मेरे साथियों को भी टाइम मिला है बड़ा, इन्होंने भी जेलें काटी हैं। ख्वाजा साहब ने, राना सनाउल्लाह साहब ने, मुझे जरा 1.5 साल मिल गया। पाकिस्तान रिमोट कंट्रोल जमहूरियत से आगे नहीं बढ़ता। मैं उसे जमहूरियत नहीं मानता, वो जर्द जमहूरियत है। जब चंद जज अपने कमरे में बैठ के, चैम्बर में, अदालत में नहीं चैम्बर में ये बैठ के फैसला करते हैं अपने घर में कि मुल्क इस तरह चलेगा, ये लीड करेगा, ये जेल जाएगा और इसको अगला हुक्मरान बनना है। मैं नहीं समझता कि मुल्क को इस तरह लेके मजीद आगे चला जा सकता है। मुल्क आपकी मर्जी से चलेगा, मुल्क लोगों की मर्जी से नहीं चलेगा। कि अगर ये हालात रहे तो बहुत से लोग जो रेलेवेंट हैं वो इररेलेवेंट हो जाए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि स्मार्ट मीटर की तनसीब का काम जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि बिलिंग के निज़ाम में शफाफियत लाई जा सके। ओवर बिलिंग किसी सूरत कबूल नहीं, मुलव्वस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली तकसीमकार कंपनियों की कारकर्दगी के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के अमूर ज़ेर बहस आए। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने हिदायत देते हुए कहा कि इंतहाई शफाफ अमल के जरिए बिजली तकसीमकार कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान की तैनाती का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। नेपरा के दीगर टारगेट के हसूल के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएँ।
वफाकी वजीर बराए तवानाई अवैस लकारी का कहना है बानी पीटीआई ने IPPs को फॉरेंसिक ऑडिट से बचाया। पीटीआई हुकूमत के फार्मूलों पर चलते तो अगले 10 साल अवाम बिजली की इजाफी कीमत अदा करते। वजीर आजम ने तरसीली निज़ाम की रीस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी दी। बिजली की खरीदो फरोख्त के लिए कंपनी का कयाम अमल में लाया गया है। मार्च 2025 में बिजली की खरीदो फरोख्त हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं होगी। बिजली कंपनियों के नुकसानात को जीरो पर लाएंगे और कैपेसिटी पेमेंट कम करके बिजली सस्ती करेंगे। पीटीआई की जो मनी थी उसके फार्मूलों के ऊपर चलते रहते तो आज से 10 साल बाद तक आपकी पाकिस्तान की आवाम 5.5 हजार अरब रुपए इजाफी बिजली की कीमत अदा करते। उस तरसीली निज़ाम को वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पावर डिवीज़न की रिकमेंडेशंस के ऊपर एक रीस्ट्रक्चरिंग की एक्सरसाइज के जरिए अप्रूव किया। इंडिपेंडेंट सिस्टम मार्केट ऑपरेटर का न सिर्फ ऐलान किया बल्कि उसकी काबीना की अप्रूवल दिलवा के कवानीन अप्रूव करके और उसका आगाज़ कर चुके हैं और मार्च 2025 के अंदर ये कंपनी इंडिपेंडेंट सिस्टम मार्केट ऑपरेटर जिसके अंदर ख़रीदो फरोख्त बिजली की हुकूमत की जिम्मेवारी नहीं रहेगी। कराची के बिजली साफिन के लिए बड़ा रिलीफ मुतवक्के के इलेक्ट्रिक साफिन के लिए बिजली ₹4.98 फी यूनिट तक सस्ती होने का इम्कान है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से कीमत में कमी करने से मुतल्लिक दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी गई। के इलेक्ट्रिक ने दरख्वास्त माही नवंबर के फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट की मद में दायर की। मंजूरी की सूरत में कराची के सार्फिन को 7 अरब 17 करोड़ रुपए से जायद का रिलीफ मिलेगा। नेपरा अथॉरिटी के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 15 जनवरी को समाअत करेगी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है CPAC फ्लैगशिप मंसूबा है। मेरी तजवीज़ है कि नया जुडिशल सिल्क रूट बनना चाहिए जिससे जनूबी एशियाई ममालिक को मुंसलिक किया जाए। सेमिनार से खिताब करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि CPAC और BRI इलाकाई जोड़ने मंसूबे हैं। तनाज़ात का मुतबादल सालसी निज़ाम भी होना चाहिए। पाकिस्तान और चीन के दरमियान कई चीज़ों में मुमासलत है। हमारे यहाँ जरगा और सुलह के रवायात मौजूद हैं। जनूबी एशियाई ममालिक और चीनी अदलिया को भी आपस में बात करने की ज़रूरत है। सक्खर में आलमी मेयार का अस्पताल बनाया गया है। इस तर्ज का अस्पताल हैदराबाद में भी बनाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का सक्खर में यूनिवर्सिटी कैंपस के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब। कहा सक्खर की खिदमत भी ऐसे करेंगे जैसे दूसरे शहरों की। सरफराज बुगटी ने कहा कि बलोचिस्तान में अस्पताल बनाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने अस्पताल के क़याम की कोशिशों पर डॉक्टर आसिम हुसैन को खराजे तहसीन पेश किया है। यूनिवर्सिटी का खर्चा सिंध गवर्नमेंट देगी। यूनिवर्सिटी बनाने का इसलिए कि बच्चे आएंगे, बच्चे पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी और इंशाल्लाह हैदराबाद में से बनवाएंगे। वहाँ भी इनको मैंने ज़मीन दी है कि वहाँ भी बनाएं। हैदराबाद में मेरी पर्सनल ज़मीन है वो दी है और इंशाल्लाह हम सक्खर की भी खिदमत वैसी ही करना चाहते हैं जैसे और शहरों की खिदमत। पंजाब भर के दूर दराज दही इलाकों में फील्ड अस्पताल की सर्विस जारी है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने रिवायती BHU को मरियम हेल्थ क्लिनिक में बदल दिया। दिल के मरीज बच्चों के लिए चीफ मिनिस्टर हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत मुफ्त इलाज और ऑपरेशन का भी आगाज कर दिया गया है। कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए लाहौर में पाकिस्तान का पहला पब्लिक सेक्टर मोहम्मद नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल तेजी से तकमील की तरफ गामजन है। दिल के मरीज बच्चों के लिए चीफ मिनिस्टर हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत मुफ्त इलाज और ऑपरेशन का भी आगाज कर दिया गया। पंजाब भर के दूर दराज दही इलाकों में फील्ड अस्पताल की सर्विस जारी। क्लिनिक ऑन व्हील्स और फील्ड अस्पताल से तकरीबन 68 लाख मरीज मुस्तफीद होंगे। मरीम नवाज का कहना था कि अवाम की सेहत तरजीह है, वसाइल की कमी नहीं होने देंगे। अवाम को सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट क्लिनिक से बेहतर माहौल देना चाहते हैं। अस्पताल में बेहतरी लाना चाहते हैं। हर मरीज को मुफ्त इलाज और मेडिसिन मिलनी चाहिए। PTI के मरकजी रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को दीवार से लगाया जा रहा है। तमाम मामलात बातचीत से हल किए जाएं। किसी भी मुल्क को हमारे मामलात में मुदाखलत का हक नहीं है। अफगानिस्तान के हवाले से पॉलिसी अहमकाना है। अफगानिस्तान के हवाले से तमाम सियासी जमातों की मुशावरत से नई पॉलिसी बनाई जाए। देखिए, आपने अगर अफगानिस्तान के हवाले से कोई पॉलिसी बनानी है तो हमारा मुतालबा ये है वहाँ जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी लीडरशिप को बिठा के उनसे मशवरा करके पॉलिसी बनाए और एक जरगा बनाए और जरगे से आगे आप उसके साथ डायलॉग करें।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिर का कहना है मुज़ाकरात का मकसद सियासी इस्तेहकाम है। 9 मई के मनसूबा साज के खिलाफ केस आगे बढ़ना चाहिए। 9 मई वाक़यात में मुलव्वस अफराद को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएंगे। जिन 85 लोगों को सजाएं हुई हैं उनके खिलाफ नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं। दिफाई तंसीबात पर हमले करेंगे तो मिलिट्री कोर्ट में ही ट्रायल होगा। अगला दौर भी होना है इंशाअल्लाह ताला 3 तारीख को, और वो जब होगा तो उसमें मजीद आगे पेशरफ्त होगी। दोनों साइडें बड़ी नेक नीति से बैठी है और मकसद यही है कि सियासी इस्तेहकाम हासिल किया जाए। ये नहीं हो सकता कि इसकी आड़ में 9 मई जैसे वाकयात को हम फरामोश कर दें, भुला दें या उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज कर लें। वो जो सजाएं हुई हैं 25 लोगों को पहले, 60 लोगों को बाद में, जो 85 लोगों को सजाएं हुई हैं उनके खिलाफ नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद थे। उनको वहां पे देखा गया था जलाओ गिराव करते हुए, तोड़फोड़ करते हुए। तो जो मुल्क दुश्मनी हुई है अगर उस पे कोई माफी हो जाए या उस मुल्क दुश्मनी को भुला दिया जाए। पारा चनान की सूरत हाल पर कराची, लाहौर, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची के 13 मकामात पर धरने, सड़कें बंद होने से शहरी ख्वार हो गए। स्टील टाउन मोड़ पर धरने से कराची ठट्टा को मिलाने वाली कौमी शराबी ब्लॉक हो गई। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। कराची के 13 मकामात पर एहतजाजी धरने जारी हैं। सड़कें बंद होने से शहरी रुल गए। नाथा खान के करीब एहतजाज के बायस एयरपोर्ट जाने वाली सड़क बंद। स्टील टाउन मोड़ पर धरने से ठट्टा कराची को मिलाने वाली कौमी शराब ब्लॉक हो गई। कामरान चुरंगी, मलीर 15, अबुल हसन असवानी रोड, अब्बास टाउन, समामा शॉपिंग सेंटर, यूनिवर्सिटी रोड, नुमाइश चुरंगी, 5 स्टार चुरंगी, सरजानी टाउन, अरनचोली शाहराह पर एहतजाज के बायस सड़कें बंद हैं। गाड़ियों की कतारें लग गईं। धरनों में खवातीन और बच्चे भी शरीक हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद कक्कन अब्बासी का कुरम मुतासरीन के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू का ऐलान। कहते हैं कि कुरम के मुतासरीन के लिए इंसाफ की जंग जारी रखेंगे। शाहिद कक्कन अब्बासी का कहना है कि कुरम मुतासिन को इंसाफ की फराहमी हमारी जिम्मेदारी है। उनके लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। शाहिद कक्कन अब्बासी का कहना है कि कुरम के हवाले से इक़दामात को चैलेंज करना ज़रूरी है ताकि मुतासरीन के बुनियादी हकूक़ बहाल हो सकें। अवाम पाकिस्तान पार्टी मुतासरीन कुरम को इंसाफ दिलाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेगी। सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और मरकजी सदर शुबा खवातीन फरियाल तालपुर से JUI सिंध के जनरल सेक्रेटरी मौलाना राशिद सोमरो की मुलाकात हुई है। पीपल्स पार्टी की आदत और जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के रहनुमाओं के दरमियान सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। मुलाकात में लाड़काना के सदर मौलाना नासिर सोमरो और अरकान से सिंध असम्बली जमील सोमरो और सुहेल अनवर सयाल भी मौजूद थे। वादी लीपा में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। सर्दी की शिदत में भी इजाफा हो गया। वादी लीपा की शेर गली टॉप पर बर्फबारी पड़ने के बाद ट्रैफिक का निजाम मुतासिर। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया ने शहरियों के लिए एहतियाती तदाबीर जारी कर दी। स्कर्दू और गिरदोनवा में बर्फबारी, नशीबी इलाकों में 6 इंच, बलाई इलाकों में 1 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान वक्फे से बर्फबारी जारी रहने की पेशगोई की है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।